So the liver, you can say, is a silent multitasker. It is also like a factory where it produces many important substances like proteins. So there are very few organs in the body which can regenerate, which means that if it is damaged partially to some extent, it can recompensate or it can come back to normal function. कि LFT का मतलब होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, एंड ये एक बेसिक टेस्ट है जो सब जगह अवेलेबल है और महंगा भी नहीं है. सो ऑल दीज डिजीजेस कैन पोटेंशियली बी रिवर्स्ड अगर ये अर्ली स्टेज फाइब्रोसिस या इवन अर्ली सिरोसिस के स्टेज पे पकड़े जाएं तो ये रिवर्स हो सकते हैं. सेम फॉर फैटी लिवर डिजीज़, जो कि आज के दिन में इज़ अ नंबर 1 कॉज ऑफ लिवर डिजीज़ इन नॉट ओनली इंडिया. 1 in 3 people in India have fatty liver disease, but also in the world. Right. Hello everyone, welcome to another episode of It's Good to Be Sure. I'm your host, Dr. Priyadarshini Pandey, and today we are discussing something very, very unconventional, which is liver health. We don't really talk about the liver as much unless something really goes wrong. But what if I told you that if we really understood the liver and what it does, we could take preemptive steps to preserve its health? Today, to discuss this with us is Dr. Abha Nagral. Dr. Abha Nagral is the Director of Gastroenterology at Jaslok Hospital. She is also the Managing Trustee of the Children's Liver Foundation. She has been trained in the UK in hepatology and liver transplant. She has successfully treating liver disease patients for a period of almost 30 plus years. She has delivered over 1,500 plus lectures and published over 125 publications in clinically acclaimed journals. Welcome, madam, to the show. Thank you. Yeah. So, madam, we want to kick off this podcast by asking a very simple question about the liver health. So, can you please tell our audience, what does the liver do? What is its function, day-to-day function? Yeah, so the liver, you can say, is a silent multitasker. So it performs a whole lot of functions. For example, the entire blood flow from the intestines come to the liver, and all the toxins and other things, impurities which we ingest, are filtered off by the liver. So it filters off and keeps the good stuff behind. It is also like a factory where it produces many important substances like proteins, clotting factors. It also produces bile, which helps us to digest fat and other vitamins which are related to it. It actually provides energy. It stores energy and provides it when you need it, like when somebody is fasting for a long time, the liver comes into play and provides the energy. It also helps in balancing blood sugars, and it also has a very important immune function in the body. So it is a multitasker, as I said, and it does it very silently. Right. So, I mean, with so many functions to perform, if any one of those is not right, I mean, it is going to affect the entire body because it's not a localized function, it's a systemic function, right? Absolutely. So, the other question I had is that we often hear that the liver is a regenerative organ, right? So, what does it mean when you say that it's a regenerative organ? Yeah, so there are very few organs in the body which can regenerate, which means that if it is damaged partially to some extent, it can recompensate or it can come back to normal function, provided the insult to the liver has been removed. For example, if a patient is drinking alcohol, which is what people associate liver with, alcohol and liver disease, if he stops drinking, as long as it's not completely damaged, the liver regenerates and comes back to its normal function. One important example of regeneration is in liver transplant, where in a living donor transplant, where you have a close relative donating a part of their liver, the relative gives 60% of his liver to his close one and keeps back the 40%. And in both the patient and the donor, the liver regenerates and comes back to its normal size and function within 2 to 3 months. So that's a fantastic capacity of regeneration and a very good example of regeneration which we have. Yeah. So, I mean, that's just amazing to hear. So, ma'am, aajkal urban settings mein, like cities like metro cities mein, it is very common to get health checkups done, right? People go for wellness checkups, health checkups, right? And we often see that in these checkups, there is a test called as LFT.
right? Nobody really pays a lot of attention to it, but it's always included in that health checkup test ka list. So I just wanted to ask you, what is LFT, and is this test a good indicator of how good your liver is functioning? Or when you're looking at liver function, what are the parameters that you will see in a routine health checkup to see whether the person's liver is functioning okay or not? So ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि LFT का मतलब होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, एंड ये एक बेसिक टेस्ट है जो सब जगह अवेलेबल है और महंगा भी नहीं है. इससे हमें कुछ आइडिया आता है. LFT अलोन इज़ नॉट गुड इनफ. और भी टेस्ट होते हैं हमें बताने के लिए लिवर फंक्शन, बट LFT से हमें अंदाज़ा आ जाता है. फॉर एग्जांपल LFT में एक SGOT-PT होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, अप टू 40 नॉर्मल होता है. 50-60 हो तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि कुछ नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बट इग्नोर मत करें. तो LFT में ये SGOT-PT आपको बताते हैं कि लिवर में इन्फ्लेमेशन, सूजन है, एंड वी हैव टू नोट इट एंड डू समथिंग अबाउट इट. LFT के आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे CBC है. CBC में अगर प्लेटलेट काउंट थोड़ा सा कम है, लोग उसे इग्नोर कर लेते हैं, बट कई बार लो प्लेटलेट काउंट लिवर की बीमारी का एक चिन्ह, सिंबल होता है. सो दैट वे वेरी सटल चेंजेस जो ये CBC LFT में आते हैं, अगर हम गौर से देखें, सो वी नो दैट वी कैन पिक अप लिवर डिजीज़ अर्ली एंड वी कैन take remedial steps towards it. Right. And then there are other tests like ultrasound abdomen. वो बताएगा आपको लिवर में फैट है कि नहीं. बट इधर मुझे ये एक बात बतानी है कि अल्ट्रासाउंड पे कोई फैटी लिवर बोलता है तो मतलब उसका एटलीस्ट 30% ऑफ द लिवर वेट फैट से रिप्लेस हो चुका है. नॉर्मली 5% से भी कम लिवर में फैट होता है. सो मगर अल्ट्रासाउंड तभी पिकअप करेगा जब 30% से वेट ज़्यादा हो गया है फैट का लिवर में, तो पिकअप करेगा. मतलब अगर आपके लिवर में 20% फैट है तो पिकअप नहीं करेगा. वो डिटेक्ट नहीं और वहाँ वो टेस्ट है जिसे हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं, जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फैट भी पिकअप करेगा. एंड नॉट जस्ट फैट से हमें क्यों फिक्र है? फैट पहले होता है स्टेज 1, उसके बाद लिवर में सूजन और आती है जिसे हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. उसके बाद लिवर में स्कारिंग शुरू हो जाता है जिसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं. और जब ये एक्सट्रीम फाइब्रोसिस हो जाता है इसे हम सिरोसिस बोलते हैं. और सिरोसिस के स्टेज में आगे चल के लिवर में कैंसर्स भी हो सकते हैं. तो ये सारे स्टेजेस हैं, और ये फाइब्रोसिस का स्टेज, सिरोसिस का स्टेज अल्ट्रासाउंड से कहीं पहले हमें फाइब्रोस्कैन बताएगा. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइब्रोस्कैन. राइट. तो मैम ये तो हमने LFT की बात की, लेकिन जैसे लेट्स से किसी ने कोई कराया ही नहीं कभी टेस्ट, कोई दे हैव नेवर डन अ फुल बॉडी चेकअप और अ हेल्थ चेकअप और एनीथिंग लाइक दैट. सो आर देयर सम एक्सटर्नल सिम्टम्स दैट वन नोटिसेस developing externally which are indicative of liver disease? What is it that you should watch out for? Yeah, so this is where the problem lies. कि जब लिवर के कारण सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है. Okay. और अर्ली स्टेजेस में सिम्टम्स इतने नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे थकावट होना. थकावट तो किसी भी कारण हो सकती है, या ब्लोटिंग होना, नोज़िया, उल्टी जैसा लगना, सो ये बॉडी एक होना, नॉट फीलिंग वेल. तो ये बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं अर्ली स्टेज में, इसलिए ये जल्दी पकड़े नहीं जाते. एंड हेंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ डूइंग लिवर फंक्शन टेस्ट. सो ये अर्ली स्टेज में होते हैं. जब लिवर ज़्यादा डैमेज होता है तो फिर आगे सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे जॉन्डिस होना, आंखें पीली होना, पेशाब पीली होना, ज़्यादा वॉमिटिंग होना, एपिटाइट बिल्कुल निकल जाना. और भी आगे के स्टेज में जैसे सिरोसिस हो गया, और वो सिरोसिस हम जिसे बोलते हैं डीकम्पनसेट हो गया, मतलब लिवर फंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भरना, पेट बड़ा हो जाना, खून की उल्टियाँ होना, या ब्लैक स्टूल्स होना, या कभी कभी लिवर में कैंसर हो जाना और उसके इफ़ेक्ट्स होना. तो ये सारे लेट स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीज़ होते हैं जो, और उसके ये सारे सिम्टम्स हैं. राइट. कभी कभी दिमाग पे भी असर हो सकता है, जिसे हम एनकेफेलोपैथी बोलते हैं. एक इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन होता है अमोनिया हमारी बॉडी में, और ये लिवर उसे फ़िल्टर कर देता है या डिटॉक्सिफाई कर देता है. लेकिन जब ये ब्रेन में चला जाए, जब लिवर अपना काम नहीं कर पाता है, तो उससे पेशेंट, जो सिरोसिस का पेशेंट होता है, वो दिन में ज़्यादा सोता है, रात को नहीं सोता, या उल्टा सुल्टा बात करता है, या कुछ अजीब हरकतें करता है, तो या बार बार गिरता है. तो ये
लेट स्टेजेस ऑफ लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स हैं। राइट। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग लिवर के स्टेजेस होते हैं, लिवर फंक्शन डिक्रीज होने के, तो आई मीन विच इज़ द स्टेज जहाँ पे अगर आप पकड़ लें तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? बिकॉज अगर सिरोसिस progresses significantly, then there is no other option but to go for a transplant, right? But is there some stage where, where if you catch it, then it is reversible? So it's I think an extremely important question. So depends on what is the cause. So if you have a fatty liver, fibrosis हो रहा है, scarring शुरू हो गया है, easily reverse हो सकता है अगर आपका weight कम कर दें, because it is related to obesity, weight, diabetes. So it can reverse. अल्कोहल पी रहे हैं, पीना बंद कर दिया, इवन सिरोसिस के स्टेज में सिरोसिस शायद रिवर्स ना हो लेकिन लिवर फंक्शन नॉर्मल हो जाता है अगर आप बंद कर दें तो, और आपका अर्ली स्टेज में वो इवन सिरोसिस पकड़ा गया तो। सिमिलरली सो मेनी डिजीज लाइक वायरल हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जिनसे सिरोसिस हो सकता है, ये रिवर्स हो सकते हैं। इवन ऑटोइम्यून डिजीजेस कैन बी रिवर्स्ड। So all these diseases can potentially be reversed अगर ये early stage fibrosis या even early cirrhosis के stage में पकड़े जाएं तो ये reverse हो सकते हैं। Same for fatty liver disease जो कि आज के दिन में is a number one cause of liver disease in not only India. 1 in 3 people in India have fatty liver disease but also in the world. Right. So ये इसे हम बोलते हैं non-alcoholic fatty liver disease क्योंकि initially जब लिवर में किसी का फैट होता था तो ये अज्यूम किया जाता था कि वो शराब पी रहा है, बट अब हमें पता है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल शराब नहीं पीते हैं and yet they have a fatty liver and therefore the term non-alcoholic fatty liver disease. So this has become the number one cause of liver disease in the country. Yeah. So, I mean, I think my follow-up question was that only, that, what are the different causes of liver disease? I mean, we've talked about few, but if you can just, elaborate on all the causes. So, I would like to elaborate on non-alcoholic fatty liver disease. इसका एक नया term है अभी, लंबा सा term है, metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. जिसे हम MASLD बोलते हैं. I don't think it's necessary to explain it, but basically ये उनमें देखा जाता है जो अल्कोहल नहीं लेते, बट जो अल्कोहल लेते हैं और उन्हें डायबिटीज़ है या मोटापा है, उनमें वो डबल डैमेज है। मतलब उनका अल्कोहल से भी लिवर पे डैमेज हो रहा है और फैट से भी डैमेज हो रहा है क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है या उन्हें डायबिटीज़ है, या घर में अगर मदर फादर को डायबिटीज़ है तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारी जो रिस्क फैक्टर्स है जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जैसे इन यंग एज PCOD जो विमेन में होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, या ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, स्लीप एपनिया, ये सारी बीमारियां आर अंडर वन अम्ब्रेला जिसे विच इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज यू हैव अ हायर चांस ऑफ डेवलपिंग अ फैटी लिवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. Right. So I mean, if you are, let us say, someone who is let us say obese, or have one of these conditions, so it is better to keep a check on your liver, right? Yes, exactly. So all these high risk people should get a health checkup. Yeah, I mean, so for example, I have hypothyroidism. So I mean, for me, it's probably important that every time I get a health checkup, I should look at my liver more seriously than yes. Then like just leave it. कि LFT तो ठीक ही है, छोड़ दो इसे, मतलब. No, absolutely. So hypothyroidism also is very much a part of this metabolic syndrome. So non-alcoholic fatty liver disease. Then you have alcohol-related liver disease, which is common. वायरल हेपेटाइटिस B और C से क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होता है. हेपेटाइटिस A और E से अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है. लेकिन इसका मतलब है कि तुरंत इन्फेक्शन होने के बाद आपको जॉन्डिस होगा, भूख नहीं लगेगी, उल्टी होगी, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा या लिवर फेलियर में जा सकता है. देन यू हैव ऑटो इम्यून डिजीजेस, जहाँ ऑटो इम्यून का मतलब है आपके ही जो इम्यून सेल्स हैं, जो सहन शक्ति है आपके शरीर की, वो आपके ही ऑर्गन के विरुद्ध अटैक कर रहे हैं, अपने ही लिवर के अटैक कर रहे हैं, और उसे ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ बोलते हैं. ज़्यादातर फीमेल्स में, औरतों में ये देखी जाती है. देन यू कैन ऑल्सो हैव सर्टन जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सो यू कैन हैव अ 6-month-old चाइल्ड विद सिरोसिस. ये हाँ, बिकॉज दिस दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द फैमिली. एंड द कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स विच कैन कॉज लिवर डिजीज लाइक विल्सन डिजीज़. ये एक मतलब ये रेयर डिजीज़ है, but amongst the rare disease, it's a common disease, and I particularly see patients with Wilson's disease, and it's a very treatable disease. So genetic disorders, and there's one more important
ग्रुप ऑफ लिवर डिसऑर्डर्स विच इज़ व्हाट वी कॉल डिली, ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी। ये बहुत कॉमन है और इसकी जानकारी लोगों में इतना नहीं है। जैसे आपको सर दर्द हुआ, आपने जाके ब्रूफेन ले लिया, सैरिडॉन ले लिया, तो ऑल दीज पेन किलर्स, या आप डेंटिस्ट के पास जाए या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाए, वो आपको ये पेन किलर्स देने ही वाले हैं। या आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत दर्द हो रहा है तो लोग ये दवाइयाँ मेफ्टाल ले लेते हैं। सो दीज आर कॉल्ड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इनसे लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर फेलियर भी हो सकता है। तो ये आप इतनी आसानी से मत लो। अगर दर्द हो रहा है तो एक पैरासिटामोल ले लो, प्लेन पैरासिटामोल, बट ये सारी ड्रग्स कैन बी डैमेजिंग टू द लिवर। काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स लिवर को डैमेज करते हैं। तो ये एक बड़ा, और मेनी हर्बल मेडिकेशंस कैन डैमेज द लिवर लाइक गिलॉय। देयर आर अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन्स विच कैन डैमेज द लिवर। सो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, Ayurvedic, whatever you say, all have a potential in some way. Some of these drugs in each group have been described to damage the liver. So जब भी हमारे पास पेशेंट एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट लेके आता है तो हम सबसे पहले मेडिसिन्स की हिस्ट्री पूछते हैं, एंड नॉट ओनली एलोपैथी बट हर्बल एंड ऑल मेडिसिन्स। ओके ओके। सो मैम, एक थोड़ा सा आप एलैबोरेट करेंगे इनहेरिटेड लिवर डिजीज़ेस, क्योंकि आपने कहा कि जेनेटिकली भी कुछ लिवर डिजीज़ होते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में एक लेडी हैं जिनको शी हैज़ लिवर सिरोसिस, एंड अपेरेंटली ऑल हर सिस्टर्स हैव लिवर सिरोसिस, एंड हर one of her parents, I mean, maybe history. So there's a strong family history. So when you see such a patient, what is it? I mean, is it a monogenic disorder or it is a polygenic? Matlab, what is? So this is important. Monogenic. I'll just explain to the audience what is monogenic. Monogenic मतलब आपका जो genes होते हैं बॉडी में, जो एक जीन एक आपका फीचर कैरेक्टराइज करते हैं। तो एक जीन की बीमारी से, एक जीन के में कुछ अगर डिफेक्ट है तो एक बीमारी होगी। जैसे मैंने विल्सन डिजीज़ के बारे में कहा, वो मोनोजेनिक है। एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है ATP7B जिससे विल्सन डिजीज़ होती है, और उसमें वो चेंजेस हो गए जिसे हम म्यूटेशंस बोलते हैं, तो वो बीमारी होती है। सो देयर इज़ वन जीन। नाउ व्हेन देयर इज़ वन जीन, आप उस जीन का टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बीमारी 90% आपको क्लिनिकली लग रहा है कि ये बीमारी है, तो वो कंफर्म करने के लिए आप वो जीन टेस्ट कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसी बीमारियां होती है जहां आपको पता नहीं है कि ये एक जीन से है या ये बीमारी क्या है। इट मे बी मल्टीपल जीन्स। फॉर एग्जांपल फैटी लिवर डिजीज़ इज़ ऑल्सो हैविंग अ जेनेटिक कंपोनेंट। और जैसे आप बोलते हैं कि परिवारों में फैटी लिवर देखा जाता है, तो वो PNPLA3 करके एक जीन है जो देखी जाती है परिवारों में, जिससे फैटी लिवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड नॉट जस्ट फैटी लिवर, ये फैटी लिवर ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस होता है। सो उस तरह की डिजीज़ है पॉलीजेनिक, जहाँ मल्टीपल जीन्स प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। राइट। सो मैम, ये जैसे कि आपने हमें पहले समझाया था कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीज, राइट? सो व्हाट इज द स्टेज वेयर द लिवर कैन नॉट बी हेल्प्ड एनी मोर एंड you advise for a transplant? And once a transplant is, मतलब how easy is it to get a matched donor, number one, and what are the patient's survival chances once the transplant is done successfully? So basically लिवर ट्रांसप्लांट या कौन सी सिचुएशन में आप ट्रांसप्लांट सजेस्ट करेंगे? एक तो कि पेशेंट को कोई लिवर की बीमारी नहीं है, वो अक्यूटली, मतलब उसकी 10 दिन की हिस्ट्री है कि उसे भूख नहीं लग रही, जॉन्डिस हो गया और फिर वो कोमा में चला जाता है, जिसे हम अक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। तो यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट की कई बार ज़रूरत लग सकती है। आई एम नॉट सेइंग इन ऑल पेशेंट्स, देयर आर सर्टन क्राइटेरिया विच विल नॉट गो इनटू, जिससे हम बोलते हैं कि हाँ, दिस पेशेंट नीड्स अ ट्रांसप्लांट एंड दिस पेशेंट मे नॉट नीड अ ट्रांसप्लांट। सो अक्यूट लिवर फेलियर। दूसरा होता है जो ज़्यादा कॉमन है कि सिरोसिस हो गया। हमने इतने सारे सिरोसिस के कारण डिस्कस किए। सिरोसिस हो गया और उस स्टेज पे पहुंच गया कि सारे कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने डिस्क्राइब किए, पेट में पानी, खून की उल्टियाँ, अमोनिया बढ़ना, दिमाग पे असर होना, वो उस स्टेज पे पहुंच गया कि नाउ इट लुक्स इरिवर्सिबल। वहाँ भी कुछ स्कोर्स होते हैं, जैसे मेल्ट स्कोर एक होता है कि अगर वो उस स्टेज पे पहुंच गया जिसे हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, जहाँ इवन अगर कोई से अल्कोहल पी रहा है और अल्कोहल बंद भी कर दी, बट इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो उस स्टेज पे हम बोलते हैं कि इन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। या लिवर में कैंसर्स के लिए हम ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं। सो ऐसी सिचुएशंस में हम ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जहाँ हम ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जैसे एक प्राइमरी हाइपर ऑक्सीलूरिया करके
जेनेटिक बीमारी है, तो इसमें ऑक्जिलेट नाम का जो केमिकल है वो ज़्यादा होता है. सो प्रॉब्लम किडनी में होता है. तो किसी को बार बार किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, हम हमेशा फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, बहुत ज़रूरी है. तो फैमिली हिस्ट्री में देखा गया है कि उसके फादर को था, उसके चाचा को था, उसके ग्रैंडफादर को था. हम फैमिली हिस्ट्री ट्रेस करते रहते हैं और हमें पता चलता है कि इतने सारे पेशेंट्स स्टोन डिजीज़, किडनी स्टोन डिजीज़ के फैमिली में हैं. उसे हम फाइनली डायग्नोज करते हैं कि इसे हाइपर ऑक्सीलूरिया है. अब वो जो एंजाइम है जो ये डिटर्मिन करती है कि उसे ये बीमारी हो ना हो, वो एंजाइम लिवर बना रहा है. लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिवर परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन वो एंजाइम लिवर बना रहा है. तो उसके किडनी के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे. तो ये भी एक अलग इंडिकेशन होता है लिवर ट्रांसप्लांट करने का. Right. So, ma'am, we've talked about, the causes of liver disease, what are the different type of testing that one can do. But I think one of the most important points to convey to our audience is that what are the preventative measures that one needs to take, lifestyle probably most specifically. And also I would like to ask you, whether there are, because aajkal people take hundreds of supplements, they are being thrown at you like anything. So in that regard also, is there do you have a formula to or any advice so that you have a healthy liver? Yeah, so no formula, but yes, liver health is related to your lifestyle to a large extent. So for example, when it comes to food, but first and foremost, alcohol, avoid alcohol. WHO so not even a little. So WHO कहता है no alcohol. But if you ask me what are the safe limits, normally हम बोलते हैं कि for a woman it should not be more than 1 drink a day. 1 drink means 30 to 45 ml of whiskey, gin, vodka, the spirits as we call them. For 1 drink is about 10 grams of alcohol. तो लोग बोलते हैं ना हम तो सिर्फ बियर और वाइन पीते हैं, तो they think कि बियर वाइन पीने से कुछ नहीं होगा, विस्की पीने से होगा. ऐसा नहीं है. फाइनली आप कितने ग्राम्स ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं. जैसे एक ड्रिंक विस्की का 45 ml और 30 ml ऑफ विस्की इज़ 150 ml ऑफ वाइन. आप तो 30 ml वाइन नहीं लेने वाले, आप 150 ml लोगे, इज़ 350 ml ऑफ बियर. तो ये सारे इक्विवेलेंट है. आप बियर भी एक पैक तो नहीं लोगे, आप पूरा 350 ml कम से कम लोगे. सो दे आर ऑल इक्वली डैमेजिंग. सो 1 ड्रिंक फॉर women and 2 drinks for men is the upper limit. But I want to make a note here कि 1/3 of our population already has non-alcoholic fatty liver disease. Yeah. तो वो 1 ड्रिंक भी फिर हानिकारक हो जाता है. So वो जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, it's no drinks. When you have any liver disease, when you have any fatty liver, other sublying factors like diabetes or something so like. 90% of those who have diabetes will have a fatty liver. Yeah. So that is the whole thing. So if you actually go to see, nobody should be drinking alcohol. So Yeah. that, and people think, and of course liver disease कब होती है? When you are drinking for many years, regular drinking. But even those who drink for a short period of time but large amounts, उन्हें alcoholic hepatitis नाम की बीमारी होती है, जहाँ acutely liver inflame हो जाता है, deep jaundice हो जाता है, पेट में पानी हो जाता है, and इसमें mortality means chances of not surviving are very high. So that is the other limit where people drink a lot and like last 6 महीने में रोज की 1 बॉटल पी रहे हैं विस्की की, that kind of a thing. These are the people who are predisposed. Yeah. So, ma'am, also tell us about the infections, right? You said Hep A, Hep B and C. So, what are the common ways in which one can acquire these hepatitis infections? I think that's also important to discuss. Yes. So, hepatitis B, C. There are other infections, but I'll talk about B and C first. These are the ones which can become chronic. These can be through injections. आप बाहर शेव करने जा रहे हैं, वो ब्लेड कौन सा यूज़ कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कान छिदवाने जा रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट इज़ बीइंग यूज्ड. सो टैटूज़ वेरी कॉमन, उससे हो सकता है. एनी पीपल अब्यूज़ IV drugs, even through injections, through blood transfusions, through sexual means. We also see lot of family members hepatitis B positive. C में नहीं देखते इतना, but B में, बिकॉज वो माँ से बच्चे को हो रहा है, या एक बच्चे को अगर किसी कारण हो गया, लाइक उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला बचपन में, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को या एक बच्चे से फादर को भी हो सकता है. इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन थ्रू सलाइवा. सो विद इन द फैमिली ट्रांसमिशन हो सकता है. सो दैट इज़ हेपेटाइटिस बी. ब्लड से हो सकता है. सेम फॉर हेपेटाइटिस सी, सिमिलर मोड ऑफ ट्रांसमिशन.
जहाँ तक हेपेटाइटिस ए और ई है, डी नहीं है हमारे इंडिया में लकीली, पर जहाँ तक ए एंड ई है दे आर अक्यूट, ये क्रॉनिक नहीं होते और ये खाने पीने से होते हैं। अच्छा। और ये मतलब आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो, पानी पी रहे हो बाहर का, पानी पूरी खा रहे हो, चटनियाँ खा रहे हो बाहर की, वो पानी किस तरह का है, उसमें क्या कंटामिनेशन, ये फीको ओरल ट्रांसमिशन बोलते हैं। थ्रू द स्टूल इन्फेक्शन पास होता है। आप गन्ने का रस पी रहे हो, मक्खी वहीं बैठी है, वहाँ ही बैठी है, आपके गन्ने के इस पे बैठी हुई है। सो दिस इज़ हाउ हेपेटाइटिस ए और ई का ट्रांसमिशन होता है। तो ऑब्वियसली हम बोलते हैं कि बाहर मत खाओ, पानी घर पे उबाल के पियो, बेस्ट। इवन बाहर खाना भी है तो गर्म पकाया हुआ खाओ, कच्ची चीज़ें मत खाओ, बिकॉज यू डोंट नो कि किस तरह वो वॉश की गई हैं। सो टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। सो दैट इज़ इन जनरल, बट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन फैटी लिवर डिजीज़, बिकॉज वो 1/3 of the population में है, and that is a big problem. And so I think I'm assuming that most of your patients who come to you come with fatty liver disease, Yes, right? often, yes. Yeah, In fact, we run a very effective fatty liver program in Just Look. It's a 3-month program where we are just teaching them the right lifestyle through physiotherapists, dietitians, even psychologists who try and understand the eating behavior. Because we have realized कि lifestyle चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो ये है कि हमें पहले फैटी लिवर डिजीज़ नहीं होता था, लेकिन हमारा खाना पीना, वेस्टर्न फास्ट फूड्स, प्रोसेस फूड्स, ये जो पैकेज फूड्स होते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, यू नो, लोगों को लगता है फ्रूट जूस इज़ वेरी गुड। फ्रूट जूस इज़ द मोस्ट harmful, yeah. You know, most harmful, I would say. Fruit juice, energy drinks, ये Red Bull, ये वो, all are the worst for fatty liver. तो जो भी पैकेज प्रोसेस रेडीमेड फूड है वो मत खाओ, घर का पकाया हुआ खाओ। इंडियन डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो अवॉइड करो। राइस, व्हीट, ज़्यादा मिलेट, जवार बाजरा, नाचनी खाओ, राइस और गेहूँ कम खाओ, वो एक हम एडवाइस देते हैं। मीठा इज़ द पॉइजन फॉर द लिवर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जितना भी मीठा हम खाते हैं वो लिवर में फैट बन जाता है, एंड दिस अवेयरनेस इज़ नॉट देयर। लोगों को लगता है फैट खाने से फैट बनेगा, वो तो बनेगा ही, लेकिन मीठे खाने से फैट बनेगा ये अवेयरनेस नहीं है। तो मीठा सबसे पहले बंद करना है। सो दीज आर द डूज एंड डोंट्स अबाउट डाइट, एंड देन ऑफ कोर्स आई वुड से कि एक्सरसाइज। आप IT जॉब में हो, एक ही जगह पे दिन भर 12 घंटे बैठे हुए हो, नहीं, हर घंटे उठो, चलो। 5वें माले पे ऑफिस है तो चढ़ के जाओ, लिफ्ट मत यूज़ करो। बोलते हैं ना टाइम नहीं है, मगर आपके काम में ही आप थोड़ा एक्टिविटी कर सकते हो, तो थोड़ा फिजिकली एक्टिव होना है। और ख़ास तौर पे लिवर की बीमारियों में लोगों को मसल मास लॉस होता है, तो उन्हें स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग करने की एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। सो वो एक्सरसाइजेज करनी है, सिर्फ चलना इज़ नॉट गुड इनफ। सो मसल बिल्डिंग एंड प्रोटीन खाने में बढ़ाना है। अंडे, चने, पल्सेस, दालें, स्प्राउट्स, पनीर, सोया, ये सारे हाई प्रोटीन फूड्स हैं जो ज़्यादा लेने हैं आपको। एक लिवर टॉनिक है ब्लैक कॉफ़ी। तो अगर मुझे कई बार पूछा जाता है कि लिवर के लिए टॉनिक, आपने पूछा कि कोई फॉर्मूला, तो ब्लैक कॉफ़ी बिना, नॉट द वे हम इंडियंस जैसे पीते वैसे नहीं, कोल्ड कॉफ़ी नहीं कोल्ड कॉफ़ी नहीं, वो दूध वाली, चीनी वाली नहीं, ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर, नो मिल्क, इज सपोज टू बी अ लिवर टॉनिक। सो दैट इज़ वन गुड थिंग फॉर द लिवर। देर आर हजारों मार्केट में लिवर क्लिनजर्स, डिटॉक्सिफाइंग लिवर टॉनिक्स हैं, बट नन ऑफ देम, वो एक लीव 52 दैट इज आल्सो, हाँ, तो वो तो हर पेशेंट बिना बताए खुद ही लेके आ जाता है। बट अगर आप मेडिकल स्टडीज़ देखो, या हम जैसे साइंटिफिक एविडेंस बोलते हैं, तो नन ऑफ देम हैव proven scientific value. So I mean, I think what you would suggest is have black coffee like twice a day or something. Yeah, 2-3 times a day. Yeah. So ma'am, thank you so much for all this information. But before we wrap up, I just wanted to ask that, is there anything else that you would like to add to all this wonderful information that you have given us today? Yeah, just 2 more points. That sleep is extremely important, and it also plays an important role in your liver health. So those who sleep 7 to 8 hours a day will have likely to have a healthy liver. Lack of sleep has been shown to, promote scarring of the liver and progression of the liver disease. So sleep well, and I think in everything that we do, we forget sleep. I also almost forgot sleep, but it's an extremely important thing, and don't take sleep as a lightly. Give it the
importance it deserves. Right. Thank you so much, ma'am, for your wonderful messages and all the information that you've given us today. To our audience, I'll say that it was such a wonderful session. I learned a lot. But the biggest thing that I learned is that it's never a good idea to ignore your health. And whenever something feels off, please get tested. Please look at your reports with a fine eye and always consult a doctor, because when it comes to health, it's always good to be sure. Thank you very much.